Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to revise the whole chapter. We have studied the light whole chapter. आज हम उसको रिवाइज करेंगे. So make sure that आप जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको प्रॉपर कर लें. रिवीजन करते चलें, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और ये जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं, ये जो हम स्टडीज़ करते हैं, दीज चैप्टर्स, दीज लेक्चर्स, दीज आर टोटली यूजफुल for the school examination as well as the Olympiads level. So you need to make sure that you study from these video lectures so that you can gain access to the knowledge and you can crack the examinations, right? So that is the main thing. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB010 in the search box of the Telegram app. Then the drop down list will appear and you are going to see the class 10 channel over there. Join that channel, access those TPPs and study material, and you will be also accessing the notifications of the YouTube classes, the upcoming YouTube classes. All right, now see, this is the team which is very doing hard work for you all. We are putting so much efforts for you all so that we can provide you the content you deserve, and that is the best quality content, right? And that is the main thing. So what you should do is you should study from these video lectures and then you are going to share it with your friends so that everybody can achieve their goals towards their studies, like school examination or the Olympiads or the various knowledge they want to have. All right, in accordance to this, we have also created some packages over there on our website. So what you need to do is you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. When you go on that website, you are going to get the two type of packages over there, full package and the test series. So full package contains all the necessary things. That is, the full package contains the study material, weekly quizzes, bi-weekly quizzes, periodic test papers, homework submission feature, and the classes. All right, so this would be good if you join that, because it would be a consistent program throughout the year and you are going to do all the necessary things required to gain that goal you have set for yourself. All right, and the next thing is you can join the test series also. You are going to get the bi-weekly quizzes, periodic test papers along with the YouTube classes. All right, so that would be the cool thing. Right now, you can buy these packages over there, and you can, for that, if you are thinking about buying them, then you can use my code CYLive to get a 30% discount. And you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. All right, so it would be good if you call us and all your queries will be resolved over there. All right, now let's get started. So first of all, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, right? That is the cool thing. वैसे तो आज हम रिवाइज कर ही रहे हैं, बट आपको भी रिवीजन करना है. ठीक है, चलिए. सो देखिए, हमने जब लाइट के बारे में स्टडी किया था, स्टार्टिंग किया था कि भाई लाइट होती क्या है, तो कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया कि लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और वो क्या करती है, खुद इनविजिबल होकर दूसरी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. एंड इसका मतलब कि वो हमें क्या करती है, एक विजन देती है, सेंस ऑफ विजन देती है. राइट, सो लाइट खुद इनविजिबल एनर्जी होती है बट ये दूसरी चीज़ों को विजिबल कर देती है, तो हमें एक सेंस ऑफ विजन मिल जाता है बिकॉज ऑफ लाइट. सो बेसिकली लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है. अब ये लाइट के बारे में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो एक साइंस की ब्रांच है, उसके अंडर पढ़ते हैं, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज दी ऑप्टिक्स. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लाइट के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वेव नेचर, द पार्टिकल नेचर, एंड वेरी मच यू कैन से ऑन अ वेरी 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 एटॉमिक लेवल, जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो ये अलग अलग ऑप्टिक्स निकल कर आते हैं. फर्स्ट वन इज द रे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, व्हेन वी टेक इट एज अ पार्टिकल. फिर आता है क्वांटम ऑप्टिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इट वेरी एटॉमिक लेवल, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव व्हेन लाइट फॉल्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर व्हाइल इट इज फॉलिंग ओवर देयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, लाइक दैट. एंड दिस इज द वेव ऑप्टिक्स और द फिजिकल ऑप्टिक्स व्हेन वी अज्यूम लाइट एज दी वेव. तो हम लोग अलग अलग नेचर जब लाइट का पढ़ते हैं तो वो हम अलग अलग ऑप्टिक्स में चले जाते हैं. दीज आर द मोर ब्रांचेस अंडर द टर्म ऑप्टिक्स. राइट, फिर देखिए हमने कुछ थ्योरीज देखी थी. फर्स्ट वन आती है पार्टिकल थ्योरी, मतलब ये माना गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स है, मतलब लाइट जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनका नाम फोटोन रखा गया. सो वी थॉट इट लाइक दैट कि बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स होते हैं
जब भी लाइट जो होती है उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स होते हैं और जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो मूव करते हैं एंड दोज आर टर्म्ड एज द फोटोन। हर एक एनर्जी पैकेट को फोटोन बोला गया, ठीक है। तो ये जो बोला गया इसे हम कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल जो हैं वो कॉर्पसल्स होते हैं, इनको ऐसा माना गया है लाइट का, ठीक है। बट ये जो थ्योरी है उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो समझा दिया, बट उसने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे कुछ फिनोमेना है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है वेव नेचर। फिर बताया गया कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। वेव नेचर के कारण हम लोगों ने जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये फिनोमेना तो पता कर लिया, बट जो नेक्स्ट फिनोमेना है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिर हम नहीं बता पाए। तो उस केस में हम इस तरीके से बताया गया कि भाई ऐसा होता भी है कि नहीं। फिर आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जहाँ पे ये माना गया कि भाई जो प्लैंक जो है उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि लाइट क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है और उनके अंदर एनर्जी होती है। तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड अ पार्टिकल ऑल्सो एंड दैट इज नोन एज द डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। सो डुअल नेचर का मतलब है लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है और साइमल्टेनियसली इट कैन अपीयर एज बोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कभी वेव नेचर की बन जाती है कभी पार्टिकल नेचर की बन जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है जब वो फोटोन्स की तरह माना जाता है कि भाई एनर्जी पैकेट्स जो हैं आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वन एनर्जी पैकेट नोन एज द फोटोन। फिर बोला जाता है भाई वेव नेचर की है कि वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनास को रिप्रेजेंट करती है। सो बाद में ये पता चला कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, इट कैन बी टेकन एज द वेव, ठीक है। फिर देखिए सोर्सेज ऑफ लाइट, सो बेसिकली दोज ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करती हैं उनको हमने बोल दिया है दोज आर नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट। जहाँ से लाइट आ रही है वो लुमिनस भी हो सकता है, नॉन लुमिनस भी हो सकता है। लुमिनस जिसकी खुद की लाइट हो, जैसे कि सन की खुद की लाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब वो खुद से अपने ही अंदर लाइट को बनाता है एंड देन इट गिव्स अस टू अस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दैट वी कैन से। बट नॉन लुमिनस जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल द चेयर इन योर रूम, तो आपकी जो चेयर है उसके ऊपर लाइट फॉल होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाती है, तब जाके आपको चेयर दिखाई देती है। सो बेसिकली आपको लगता है चेयर से ही लाइट आ रही है, सो दैट कैन बी टेकन एज अ सोर्स ऑफ लाइट बट नॉट अ लुमिनस वन, ठीक है। उसके पास खुद की लाइट नहीं थी, उसने तो फॉल होते हुए लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया है, राइट। सो वो नॉन लुमिनस कैटेगरी में आती है। फिर देखिए मीडियम ऑफ लाइट, देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ लाइट। मीडियम का मतलब है ऐसा मटीरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट जाने की कोशिश करे या फिर वो चली जाए, ठीक है। तो 3 तरीके के मीडियम बताए गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशन, ऑपेक। ट्रांसपेरेंट फुली लाइट जिसमें से चली जाती है, ट्रांसलूशन थोड़ी सी लाइट जाती है, पार्शियल लाइट जाती है, ऑपेक जिसमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं जा सकती, ठीक है। अब देखते हैं बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली हमने सबसे पहले मीडियम के बारे में जाना। मीडियम जो होता है, जो मटेरियल जिसमें से लाइट जाने की कोशिश करती है या चली जाती है, तो वो जो मीडियम मटेरियल होता है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस तब बोल दिया गया जब पूरा का पूरा मीडियम सेम कॉम्पोजिशन का बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मीडियम, बट जो हेटेरोजेनस होते हैं वो पूरा का पूरा सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हेटेरोजेनस हमने एयर माना है। एयर क्यों माना है? क्योंकि कहीं पर एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो लाइट क्या है वहाँ पर जाके थोड़ी सी भटकाव हो सकता है, ऑपेक बन सकता है, कुछ पार्शियल इल्यूजन हो सकता है, फॉग जैसे कंडीशन हो जाती है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अ हेटेरोजेनस, मतलब पूरा मीडियम जो है वो सेम नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, सो वी टेक दैट एज द हेटेरोजेनस, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई लाइट कभी भी एक मीडियम से होती हुई कभी भी दूसरे मीडियम में जाने की जब कोशिश करती है तो 3 तरह के फिनोमेना उस एक सरफेस पर होते हैं। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई और मीडियम, नीचे कोई और मीडियम, दैट इज नोन एज द इंटरफेस। सो जैसे ही लाइट इंटरफेस पर जाती है वैसे ही 3 तरीके के फिनोमेना उस जगह पर अकर होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्शन, जो भी लाइट आई इंटरफेस की तरफ उसमें से कुछ पार्ट चला गया रिफ्लेक्शन में, वापस सेम मीडियम में चला गया, कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में चला गया और कुछ पार्ट उसी इंटरफेस के मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो 3 तरह के फिनोमेना हुए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जहां पे रिफ्लेक्शन मतलब वापस मीडियम में चला गया, सेम मीडियम में चली गई थोड़ी सी लाइट। फिर एब्जॉर्प्शन, उस जगह पर उस इंटरफेस के ही मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ी सी लाइट को, एंड
अब जो बचा हुआ पार्ट है वो जो लाइट का बचा हुआ पार्ट है वो सेकंड मीडियम में एंटर कर गया. सो दैट इज द रिफ्रैक्शन. सो 3 फिनोमेना होते हैं व्हेनेवर लाइट एट दैट टाइम. अब देखिए लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये वैक्यूम में से जा सकती है, ठीक है, इसका डुअल नेचर होता है, इसे जाने के लिए मीडियम में से भी वो जा सकती है, ठीक है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, यू कैन से लाइट जो है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, यू कैन से मिक्सचर है. सो लाइट के अंदर विबग्योर नाम के 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर ऑल द 7 कलर्स. अब देखिए लाइट जो है वो बहुत तरीके के फिनोमेना शो करती है, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑलराइट, बहुत इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब बहुत सारे फिनोमेना को वो करती है. Whenever light goes from vacuum to another medium, उसका जो स्पीड है उसमें डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द मटेरियल. जिस भी मीडियम में वो जा रही है उस मीडियम के नेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड में चेंज आता है, इट डिक्रीजेज इट्स स्पीड, ठीक है. फिर देखिए कुछ टर्म जो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रे ऑफ लाइट. जब कभी भी आप लाइट के पाथ को बताते हो दैट इज नोन एज द रे. किस तरीके से बता रहे हो, एक एरो की हेल्प से बता रहे हो कि भाई लाइट यहाँ से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज द रे. इसी तरीके की बहुत सारी रेज अगर आप इकट्ठी कर लेंगे, दैट कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज द बीम ऑफ लाइट. अब ये बीम 3 तरह की होती है. अगर जो रेज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, बहुत सारी रेज पैरेलल जा रही हैं, तो दैट बीम इज नोन एज द पैरेलल बीम. अगर सारी की सारी रेज जो है लाइट रेज वो एक पॉइंट की तरफ जा रही है, एक ही पॉइंट की तरफ जा रही हैं, सो दैट बीम कैन बी टेकन एज कन्वर्जेंट. अगर ऐसा होता है कि भाई एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज जा रही हैं दूर दूर अलग अलग डायरेक्शंस में, दैट कैन बी टेकन एज द बीम ऑफ डाइवर्जेंट बीम, ठीक है. फिर देखिए रिफ्लेक्शन. अब देखिए रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है कि भाई लाइट एक मीडियम से आ रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर शाइनिंग और स्मूथ सरफेस से अगर वो टकराती है तो सेम उसी मीडियम में वापस चले जाती है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है. दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये हमें नेचर में भी देखने मिलता है, ठीक है. और ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए. यहाँ पे नंबर 1 आता है इंसिडेंट रे. वो जो लाइट रे है जो मिरर के ऊपर फॉल करती है, इंसिडेंट रे. लाइट रे जो कि मिरर के ऊपर टकराने के बाद चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल होती है मिरर पे, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज नोन एज द नॉर्मल. And the mirror highly surfaced, you can say highly you can say smooth surface or you can say a polished surface, ठीक है, that is the mirror. all right. उसके बाद देखिए एंगल्स जो आपको पता होने चाहिए. 2 एंगल्स. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. उसके बाद आते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज द ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. उसके बाद देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये तीनों रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं. सो दीज आर द 2 लॉज. और ये जो लॉ है वो एवरी सरफेस फॉलो करती है, एवरी सिंगल सरफेस, आइदर इट इज रफ आइदर इट इज स्मूथ, ठीक है. हर एक वो जो सरफेस है वो इसको फॉलो करती है. कुछ फैक्ट्स देखिए. अगर आप मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप लाइट रे को डाल रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं, सो इट विल लाइक आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव बैक टू द सेम पाथ, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है. उसके अलावा देखिए कि भाई ये जो लॉज हमने लिखे हैं वो हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, आइदर इट इज कर्व्ड, आइदर स्मूथ, आइदर रफ, सब सरफेसेस के लिए वैलिड हैं ये लॉज, ठीक है. फिर देखिए 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, रेगुलर वन एंड द इरेगुलर. सो देखिए जब कभी भी ऐसा होता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है किसी भी सरफेस पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही चले जाती है, तो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज टेकन एज द रेगुलर वन. जो आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन. वही हम बात करते हैं इरेगुलर की. इरेगुलर वो रिफ्लेक्शन होता है जब कभी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो फॉल कर रही है सरफेस पे, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमली कहीं भी जा रही हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर you can say the laws, but they are going in the various directions. अब वो parallel नहीं रही after reflection. That type of reflection is known as the
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। तो जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं आपके रूम में जो प्रेजेंट बल्ब, पिक्चर फ्रेम, विंडोज, कर्टेन्स, अलमीरा, बैड्स, जो कुछ भी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। आप मून को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। एवरी सिंगल थिंग यू आर एबल टू सी इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं ये जनरली रफ सरफेसेस की वजह से होते हैं, बिकॉज अगर कोई स्मूथ सरफेस होगी तो वो मिरर की तरह आपका जो इमेज है वो दिखा देगी, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर किसी सरफेस के लिए हमेशा वैलिड होंगे, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर, हर तरीके के रिफ्लेक्शन में जो है वो वैलिड होंगे, हर तरह की सरफेस पे वो वैलिड होंगे, ठीक है। फिर देखिए लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में जाएगी लाइट, बट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। बचपन में हम ऐसे सन का डायग्राम बनाते थे ना, हमें बचपन में ही पता चल गया था कि जो लाइट है बिल्कुल सीधी जाती है बट हर किसी डायरेक्शन में जाती है, समझे। दिस इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हमने इसे थोड़ा सा देखा था, प्रूफ किस तरह करते हैं, देन वी लुक अप टू द सम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है भाई प्लेन मिरर से। सबसे पहले तो समझते हैं भाई ऑप्टिकल इमेज क्या होती है। ऑप्टिकल इमेज मतलब एक ऐसा रिक्रिएशन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सरफेस। तो मतलब आप मिरर के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रिक्रिएशन देख रहे हो, दैट इज नोन एज द इमेज, दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल इमेज, समझे। अब देखो दो तरीके की इमेजेस होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि मिरर के बाहर होती है, और यू कैन टेक दैट एज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन एनी स्क्रीन। आप किसी स्क्रीन पर उसको ले सकते हो, आप उसके स्क्रीन पे देख सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें वर्चुअल की, तो आप उसको किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते, वो आपको मिरर के अंदर दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर में जो आप अपना इमेज देख पाते हैं दैट इज द वर्चुअल वन। ऊपर से जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से इमेज बनती है। बेसिकली हमने कुछ लाइट रेज को मिरर के ऊपर भेजा, रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के पीछे ज्वाइन किया, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द प्लेस वेयर द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमने कुछ देखे थे इमेज फॉर्मेशन अबाउट डी। प्रूफ में हमने देखा कि भाई जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, जिसमें पहला है कि भाई प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है इरेक्ट होती है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसका साइज बिल्कुल सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसको बिल्कुल सेम डिस्टेंस होता है मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ठीक है। एंड देन यू कैन से कि भाई जो इमेज होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, जैसे किसी ने पलट के खड़ा कर दिया है। ऑब्जेक्ट का राइट साइड विल बी द इमेज का लेफ्ट साइड, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड विल बी द इमेज का राइट साइड। तो ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है, ठीक है। फिर वहीं हम बात करते हैं कि भाई लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वो हमने देखा। अब ये क्यों होता है, बिकॉज इमेज जो होती है वो कैसे बनती है, डिस्टेंस की वजह से। हमारी बॉडी का जो भी पार्ट आगे है, ठीक है, कम डिस्टेंस पे है, वो पहले इमेज रिक्रिएट हो जाता है, मतलब वो हमें भी आगे दिखाई देगा, उसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का है, राइट। इसके बदौलत वी कैन सी द लेटरल इन्वर्जन ओवर देयर। फिर आप देखिए अगर आप दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रख दें, ठीक है, किसी एंगल पे रख दे तो आपको अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। जैसे आप देखिए, अब पता कैसे करें, जैसे इसमें देखो आप यहाँ पे दो मिरर्स रखे हैं, दो मिरर हैं यहाँ पर, दो प्लेन मिरर हैं, एंगल पे रखे हुए हैं किसी एंगल पे। यू आर गोइंग टू गेट इस स्मॉल टॉय की आपको 1 2 3 4 इमेजेस मिल रही हैं। सो द नंबर ऑफ इमेजेस यू आर गोइंग टू गेट बाय कीपिंग 2 प्लेन मिरर्स एट सम एंगल। तो कितने एंगल पे कितने इमेजेस आपको मिलेंगी वो देखो। जितने एंगल पे रख रहे हैं, अगर 360 डिग्री बाय डिवाइडेड बाय दैट एंगल, जितने एंगल पे आप रख रहे हैं, अगर आपको इवन मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिग्री बाय थीटा माइनस का 1। अगर यही 360 डिग्री बाय थीटा इज इक्वल्स टू ऑड, अगर ऑड नंबर आ जाता है आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर बाइसेक्टर पे रखी होगी ऑब्जेक्ट तो इट वुड बी 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, और अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखी होगी, कहीं पर भी रख दी होगी इर्रेगुलर, सो 360 डिग्री बाय थीटा। अब देखिए अगर वो फ्रैक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन आ जाए तो इंटीजर नंबर होगा उसका नंबर ऑफ इमेजेस ओवर देयर, ठीक है। फिर हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस
एंड देन लेट्स सी द स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए स्फेरिकल मिरर्स मतलब ऐसे मिरर्स जो कि कर्व हो चुके हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मिरर जो कि कर्व्ड है, एक बड़ी सी बॉल का पार्ट है वो मिरर्स, ठीक है। दो तरीके के ऐसे मिरर्स हैं जिनमें एक है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स। कनकेव में क्या होता है भाई, बाहर का आउटर पार्ट होता है शेडेड, अंदर का पार्ट होता है बिना शेड, मतलब यू कैन से दिस इज द शाइनिंग पार्ट, यहाँ पे लाइट फॉल होता है, पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पर पेंट कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन सी अब कन्वेक्स में जो आउटर बाहर निकला हुआ पार्ट है वो शाइनिंग सरफेस होता है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है, और जो अंदर का पार्ट है कर्व पार्ट है उसमें हम शेड कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज दी कन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है मिरर वो दैट इज कन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ रहता है केव टाइप रहता है तो वी कॉल दैट एज द कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया भाई कनकेव कन्वेक्स क्या है, इनके कुछ यू कैन से टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखिए ये होते हैं पोल, मतलब मिरर का बीचों बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द पोल, दोनों का पोल। फिर देखो ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर का सेंटर वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फेयर का जो रेडियस होगा दैट वुड बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है दैट लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो आपको पता होना चाहिए वो क्या, ये द साइज ऑफ द मिरर, दिस साइज ऑफ द मिरर इज नोन एज द अपर्चर, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टर्म्स जो कि हमने देखे थे, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट थिंग, प्रिंसिपल फोकस। सो देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें और पढ़ी थी, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। सो देखिए लाइट रेज जब आ रही होती है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं मिरर से टकराने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट, ठीक है। ये कनकेव के केस में है। कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि लाइट रेज आती हैं और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जैसे वो किसी पॉइंट से आ रही हूं, तो वो पॉइंट हो गया क्या, इसका फोकस। अब प्रिंस फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ मतलब इसी फोकस का और पोल का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। अब आप खुद से देख सकते हैं कि भाई हमेशा कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड, यानी नेगेटिव होगा। कन्वेक्स मिरर के केस में जो इसका फोकल लेंथ है वो किधर की तरफ है, पॉजिटिव साइड है। सो यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। रूल्स देखिए, जब कभी भी कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से जाएगी। कन्वेक्स कनकेव के केस में कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है कन्वेक्स के केस में तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे वो फोकस से आ रही हो, ठीक है। वही सेकंड रूल देखिए, कोई भी लाइट रे अगर कनकेव के केस में एक मिनट बस, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी, मतलब वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी। उसी तरीके से कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। तीसरा रूल देखिए, कोई भी लाइट रे को अगर आप फोकस से भेजेंगे कनकेव मिरर के केस में तो वो पैरेलल बनकर चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। कोई भी लाइट रे को अगर आप इस तरीके से भेजेंगे जैसे आप कन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ भेज रहे हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। फोर्थ रूल देखिए, अगर आप किसी एंगल पे पोल पर किसी एंगल पे लाइट रे को डाल रहे हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जस्ट यू बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से बिल्कुल कन्वेक्स मिरर के केस में होगा, ठीक है। फिर आप देखिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए देयर आर वेरियस रूल्स, बट लेट्स सी, ये हमारे रूल्स हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। देयर आर टू रूल्स और यू कैन से ऐसे टू स्पेसिफिकेशंस कि भाई आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो आपको कैसी इमेज मिलेंगी। तो देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जाके रखोगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे आप जाके रखोगे तो भाई आपको कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी इमेज, बहुत ही छोटी मिलेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर मिलेगी बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, एंड इट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वहीं पर देखो अगर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो आपको पोल और फोकल लेंथ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में आपको हमेशा इमेज मिलेगी एंड इट वुड बी डिमिनिश, छोटी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मतलब मिरर के अंदर ही होगी, ठीक है, मतलब बिहाइंड द मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का केस, राइट, कन्वेक्स मिरर का था तो ये यूजेस हैं, क्योंकि देखो कन्वेक्स मिरर आपको हमेशा छोटी इमेज देगा। तो
तो कन्वेक्स मिरर को हमें वहां यूज करना चाहिए जहां हमें छोटी इमेज चाहिए, जैसे कि कार का रियर मिरर्स जो होते हैं या किसी भी व्हीकल के जो रियर मिरर्स होते हैं, वहां पर हमें क्या चाहिए होता है कि कार के पीछे का जो पूरा इंटायर एरिया है ना वो हमें छोटे रूप में दिख जाए, ठीक है, ताकि हम सभी व्हीकल्स को देख सके, राइट। तो उस वक्त हमें क्या चाहिए होता है, कन्वेक्स मिरर चाहिए होता है, ठीक है। वहीं पर जो है ये शॉप सिक्योरिटी मिरर्स की जगह पर भी कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कनकेव के केसेस, सो लेट्स ट्राई टू समराइज दैम इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। देखिए ये है कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन। इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बनेगा फोकस पे बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, और कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर देखिए अगर आप बियॉन्ड सी थोड़ा पास लेके आएंगे तो एफ एंड सी के बीच में बनेगा, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज आ जाएगी और सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, थोड़ा और पास ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी इमेज बनने वाली है, बड़ी हो जाएगी अब इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और पास लेकर आ रहे हैं मिरर के, अब इन्फिनिटी पे चली गई है इमेज, बहुत बड़ी हो गई है, हाईली एनलार्ज्ड हो गई है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर आपने और ज्यादा कोशिश की ऑब्जेक्ट को पास लाने की, देखो पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया और पास लेके आ गए, बिहाइंड द मिरर चली जाएगी इमेज, बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे कनकेव मिरर को मेनली बड़ा साइज की इमेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर को छोटे साइज की इमेजेस लेने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब कनकेव मिरर में हमें बड़ी इमेजेस मिल रही है, इसका फायदा कौन उठा सकता है, शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में हमको अच्छे से ताकि एरिया दिख सके, सो वी यूज दी कनकेव मिरर। वहीं पर डेंटिस्ट कनकेव मिरर को यूज करते हैं, राइट। बहुत सारी जगह कनकेव मिरर्स होते हैं, सोलर कुकर में होता है, बर्निंग मिरर्स में, टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में कनकेव मिरर यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन। सो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या है, आपको हमेशा जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो पता है ना आप लोग को, बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ओरिजिन रख देना है पोल पे, ठीक है। वो जो एक्स एंड वाई एक्सिस का ओरिजिन आता है जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती हैं, वो आपको रख देना है पोल पे, ठीक है। अब अगर वहां पोल से अगर आप लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो माइनस एक्स आता है, तो मतलब नेगेटिव डिस्टेंसेस। अगर आप पोल से राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो भैया पॉजिटिव डिस्टेंसेस। अगर आप पोल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव डिस्टेंसेस, पोल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंसेस। बस ये 4 चीजें रिमेंबर रखिए। और देखिए हमेशा लाइट रे कहाँ से आएगी, लेफ्ट से आएगी राइट की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से जाती 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 पॉजिटिव की तरफ जाएगी ऑलवेज। अगर ये कुछ चीजें आपको पता चल जाती हैं तो यू आर सो गुड टू गो अबाउट द साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलिए और आगे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा क्योंकि वो उधर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। रियल इमेज के लिए हम जो इमेज डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस दैट इज वी, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे देखो u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंसेस कहाँ से नापे गए हैं, पोल से। f और फोकल लेंथ, ठीक है। ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हम लोग मेजर कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है वहीं से। अब आप देखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। रूल्स क्या है, आपको u, v, f के सारे प्रॉपर साइन यूज करने हैं और ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए ही वैलिड है, ठीक है। फिर देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है डायोप्टर्स में अगर हम देखें तो -1/f, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ मिरर, ठीक है, -1/f। और ये जो फोकल लेंथ है ये हमेशा मीटर्स में लिखना है, ठीक है। हमेशा पहले मीटर्स में कन्वर्ट करो और तभी पावर निकालो, ऑलराइट। फिर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि भाई ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज हमें कैसी मिल रही है, छोटी मिल रही है, सेम साइज मिल रही है या बड़ी मिल रही है। तो देखो मैग्निफिकेशन जब छोटा हो, 1 से छोटा हो तो मतलब इमेज छोटी है,
मैग्निफिकेशन जब 1 के बराबर हो तो मतलब सेम साइज है, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है। मैग्निफिकेशन से अगर 1 से बड़ा हो गया मैग्निफिकेशन तो इसका मतलब जो इमेज है वो बड़ी बन गई है। और कैसे कैलकुलेट करोगे मैग्निफिकेशन, देखो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट का हाइट, ये है आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा आप देखो दूसरा जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो देखो माइनस का v बाई यू, यानी माइनस का इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहीं पर अगर आप यूज करोगे मिरर फॉर्मूला और जो ये इक्वेशन है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल सकता है, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो आप अगर मैग्निफिकेशन का लेट से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसी है, इमेज वर्चुअल है। वहीं अगर मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसके पहले तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब देखिए रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब कभी भी लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से आती है, सरफेस पर जाते जो एक इंटरफेस है जिसके ऊपर अलग मीडियम जिसके नीचे अलग मीडियम, तो उस इंटरफेस पे वो आती है। उस इंटरफेस से जैसे ही वो सेकंड मीडियम में जाती है वो हल्का सा अपना पाथ चेंज कर लेती है, ठीक है। और ये वो क्यों चेंज करती है, क्योंकि अचानक से उसे अलग तरीके का मीडियम मिल गया है, अलग पार्टिकल सिस्टम मिल गया है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो वो अपना हल्का सा पाथ चेंज कर लेती है और वो सेकंड मीडियम में सीधे चले जाती है, ठीक है। सो देखिए किस तरीके से वो जाती है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये देखो इंसिडेंट रे, हल्का सा पाथ यहाँ पे चेंज हो गया है, यू आर गोइंग टू गेट अ स्मॉल रेडियस ऑफ यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टेड रे जो कि सेकंड मीडियम में जा रही है, ऑलराइट। अब देखो 3 केसेस हो सकते हैं भाई। 3 केसेस क्या हो सकते हैं, जब कभी भी जो यू कैन से लाइट रे है अगर वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। वहीं पर अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो मतलब ये नॉर्मल से दूर चले जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। और अगर ये बिल्कुल सरफेस के 90 डिग्री पे जा रही है तो वी कैन से वो सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी चेंज इन पाथ, ऑलराइट। फिर देखिए ऑप्टिकल रेयरर मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होता है मतलब यहाँ पर लाइट बहुत तेजी से जा सकती है, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की अगर हम बात करें तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि उस जगह पर लाइट का स्पीड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। लाइट जा रही है बट लाइट का स्पीड कम हो गया बिकॉज बहुत सारे वहां पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बातें करें एयर और वाटर के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे तो एयर वुड बी द रेयरर और वाटर जो है वो डेंसर हो जाता है, ठीक है। फिर देखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। अभी एयर में आ रही थी अच्छी खासी स्पीड आ रही थी उसकी लाइट की, अब अचानक से वो वाटर में एंटर कर रही है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो ये जब अचानक से स्पीड चेंज हो जाता है तो वहां पर लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है, हल्का सा वो बेंड हो जाती है। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखिए वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाते हैं जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड रे की सेम रहती है और देखिए इंटेंसिटी वो चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट रे से कम हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए कुछ इफेक्ट्स। पेंसिल आपको छोटी नजर आएगी और मुड़ी हुई नजर आएगी जब आप उसे पानी में से देखेंगे। आप एक ग्लास, आधे भरे कांच के ग्लास के अंदर आप पेंसिल रखिए, नीचे वाला पार्ट जो पानी के अंदर है वो अलग डायरेक्शन में दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट जो पानी के बाहर है वो अलग डायरेक्शन में दिखेगा। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा इफेक्ट देखिए, आपको जो स्विमिंग पूल्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, ये सब इनका जो बेस है वो आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है, रीजन रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर देखिए अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन, आपको अलग पोजीशन दिखता है। देखो अभी जैसे होराइजन है, ठीक है, सन अभी राइज नहीं हुआ, एक्चुअल सन यहाँ पर है, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये जो सनलाइट अंदर आ रही है उसके रिफ्रैक्शन की वजह से आप देखेंगे कि सन तो वहां है, तो आपको विजिबल होगा, आपको ऐसा नजर आएगा कि सन वहां है, बट एक्चुअली में सन वहां नहीं है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसकी वजह से आपको 2 मिनट पहले से सूरज दिखता है और छुपने के 2 मिनट बाद तक आपको सूरज दिखाई देता है।
तो आपका नॉर्मल डे जो है वो 4 मिनट्स का हो गया है, राइट। फिर देखिए आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है रिफ्रैक्शन की वजह से आते हैं, और स्टार्स की पोजीशन भी आपको जो है दिखाई देती है, जो एक्चुअल में जो आपको दिखाई दे रहा है वहां से वो है अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, वहां से हल्का सा नीचे होता है स्टार, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, राइट। बहुत सारे उसके जो हैं यू कैन से वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस, और यू कैन से कि वहाँ है वो फिनोमेना, अकर कर रहा है वो फिनोमेना वहाँ, ठीक है। फिर देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें पहला है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये यू कैन से नॉर्मल, राइट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। तो ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों की तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड जो लॉ है दैट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ, उसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू दी 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक तरीके से हम बताते हैं कि उस मीडियम के अंदर से लाइट कितना तेजी से जा सकती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी उस मीडियम में जाने पे, ठीक है। फिर देखिए आप किस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब आप मीडियम और वैक्यूम में स्पीड कंपेयर करते हो तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप किसी और टर्म जैसे वेवलेंथ की टर्म्स में लिख रहे हैं तो वैक्यूम के अंदर लाइट का जो वेवलेंथ है डिवाइडेड बाय मीडियम के अंदर जो लाइट का वेवलेंथ है वो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरे रिलेटिव इंडेक्स में कह सकते हो जब 2 मीडियम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मीडियम में कुछ और दूसरे मीडियम में कुछ और, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर देखिए अगर जो फैक्टर्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द मीडियम, किस तरीके का नेचर है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर, और सराउंडिंग मीडियम का नेचर, इन सब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली हमको इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कोई भी लाइट रे है वो कितने एंगल पे बैंड होगी, कितना ज्यादा बेंडिंग होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है टूवर्ड्स द नॉर्मल है, तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मदद पता चलेगा। कितना स्पीड है लाइट का, कितना चेंज आ गया है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से पता चल सकता है, ठीक है। फिर आप देखिए इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ अपेरेंट डेप्थ इन रियल डेप्थ, असली जो डेप्थ है वो और जो दिखाई दे रही है आपको व्यू आ रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो आपको पता चल रहा है अपेरेंटली दिख रहा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन आप देखिए हम लोगों ने डिराइव किया था इसे, राइट। एंड वी हैव ये देखिए ये है हमारा लास्ट फॉर्मूला, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द अपेरेंट डेप्थ। सो व्हेनेवर यू वांट टू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, अपेरेंट एंड द रियल डेप्थ, यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखते हैं। सो देखिए जब हम ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमने ये पाया कि ये जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो 2 पॉइंट पर हो रहा है, 2 सरफेसेस पे हो रहा है। एक तो ऊपर वाली सरफेस पे होता है जब एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है लाइट, तब एक रिफ्रैक्शन होता है। फिर ग्लास से वो वापस एयर में बाहर जा रही है तब रिफ्रैक्शन होता है। तो देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस व्हेनेवर लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। और ये जो बाहर आ रही है लाइट रे दैट इज इमर्जेंट लाइट रे, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट वन। इंसिडेंट लाइट रे जो होती है उसके बिल्कुल पैरेलल होती है इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइट रेज होती है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लाइट अपनी असली पाथ से कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है, दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा आप देखिए यहां पर हम बता सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया, राइट। उसके अलावा हम बता सकते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि देखिए जो लाइट रे बाहर आ रही है रिफ्रैक्टिव पूरा रिफ्रैक्शन के बाद जो बाहर आ रही है, यहाँ पर अगर हम प्लेन मिरर रख दें और इस तरीके से रखें कि ये लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल मिरर पे जाके फॉल हो, उसके बाद क्या होगा,
क्योंकि वो 90 डिग्री पे फॉल होगी तो इट विल गो बैक एंड इट विल ट्रेस द सेम पाथ, जिस पाथ से वो आई थी वो बिल्कुल उसी पाथ पे लाइट रे चली जाएगी। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। फिर हमने इनके बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ लगा के वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 1, ठीक है, हमें 1 जो है वैल्यू मिलेगी। फिर देखिए आप लेटरल शिफ्ट हमने देखा था, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी एमर्जेंट रे एंड दी यू कैन से इंसिडेंट रे। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कितना मोटा है उस पर डिपेंड करता है। इंसिडेंट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं, जो कि हम कंपाउंड स्लैब की बात करते हैं। तो देखिए कंपाउंड स्लैब में क्या हो रहा है, कंपाउंड स्लैब का मतलब है भाई लाइट जो है वो बार बार कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शंस में जा रही है। तो यहां पर भी हमने क्या किया था, 3 तरह के मीडियम लिए थे, एयर, वाटर, ग्लास, एयर। तो ये हमने 3 तरीके के मीडियम ले लिए थे एंड देन वी कॉज इट टू द रिफ्रैक्शन। हमने स्टडी किया था कि भाई स्नेल्स लॉ लगाकर हम किस तरीके से क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रिज्म के बारे में सीखा था। भाई प्रिज्म जो होता है बहुत ही अलग उसका शेप होता है, ठीक है, आप इसे बोल सकते हो एक ट्रायंगुलर सिलेंडर होता है अगर हम देखना चाहें तो, ठीक है। उसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस वो फेसेस होते हैं जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन, एक बार लाइट एंटर कर रही है और जिस सरफेस पे से लाइट बाहर आ रही है, दोनों को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव फेसेस। फिर आता है रिफ्रैक्टिंग एज। तो रिफ्रैक्टिंग एज इज द लाइन विच इज जॉइनिंग दोज टू सरफेसेस, ठीक है, जहां पर एडी हम बोल रहे हैं। फिर आता है बेस, भाई जो बेस होता है प्रिज्म का, ठीक है, वो बेस हो गया। एंगल ऑफ द प्रिज्म, दोनों रिफ्रैक्टिव फेसेस के बीच का एंगल इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म हियर। फिर आता है लास्ट में प्रिंसिपल सेक्शन। तो अगर आप इस पूरे प्रिज्म को इस तरीके से कट कर दें, यू आर गोइंग टू सी दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल सेक्शन, ऑलराइट। उसके अलावा हमने देखिए डेविएशन पता करने के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था बेसिकली। तो यहाँ पर मेन क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे आती है, एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एयर से वो डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट रे गई एंड द नेट कम्स आउट, तो अब वो बाहर आ रही है फ्रॉम अ ग्लास टू दी यू कैन से दी एयर, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे का जो पाथ था, इस पाथ से एक्चुअली में एमर्जेंट रे कितना डेविएट हो गई है, वो एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस डेल इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन हियर। यहाँ पर आपको जो विबग्योर मिलता है वो हमें प्रिज्म से मिलता है। रीजन इज द पर्टिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म का ऐसा शेप है, दिस इज द रीजन कि यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट कलर्स जो कि लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 7 कलर्स विबग्योर, ऑलराइट। हमने यहाँ पर जो है काफी सारा डेरिवेशन किया था जब हम प्रिज्म को देख रहे थे, एंगल ऑफ डेविएशन का हमने पूरा अच्छे से डेरिवेशन किया था और हमें रिजल्ट मिला था। वो क्या मिला था कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिला। फिर हमने देखा कि भाई जब कभी भी जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है और इंसिडेंस, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू गेट, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा अगर हम उनके बीच में, एंगल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए अगर कभी ऐसा होता है कि भाई बाहर डेंसर मीडियम है और प्रिज्म का रेयरर मीडियम है और आप अंदर भेजे लाइट रे को, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये लाइट रे जो बाहर आएगी, एमर्जेंट लाइट रे होगी, वो बेस से दूर चले जाएगी, ठीक है, जैसा कि अपोजिट है। क्योंकि देखो जब हम प्रिज्म में भेज रहे हैं तो अंदर ग्लास का बना हुआ प्रिज्म, एयर से ग्लास के अंदर लाइट में रे आ रही है, तो वो क्या होता है, बेस के टूवर्ड्स बेंड होती है। बट इन दैट केस अगर अंदर रेयरर मीडियम है, बाहर डेंसर मीडियम है, तो इट विल, जो एमर्जेंट रे होगी वो बेस के दूर चले जाएगी, इट विल यू कैन से डेविएट अप टू दी अवे फ्रॉम द बेस। फैक्टर्स देखिए जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं इनके, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑलराइट। चलिए फिर देखिए डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, जब लाइट रे 7 कलर्स में टूट जाती है, दिस इज नोन एज द डिस्पर्जन।
और ये जो बैंड हमें मिलता है, ये जो बैंड हमें ऑफ 7 कलर्स मिल रहा है, दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमने न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था। सो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की कलर्स हम देख पाते हैं। देखिए कोई भी कलर अगर आपको विजिबल है, लेट्स से ग्रीन लीफ, आप हरी पत्तियां देख पा रहे हैं, तो जो ग्रीन कलर आपको विजिबल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जब 7 कलर्स उस पत्ती के ऊपर फॉल होते हैं तो 6 कलर्स, रिमेनिंग 6 कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ एक ग्रीन कलर को आपकी आंखों तक भेजती है। दैट इज द रीजन कि आपको वो पत्ती ग्रीन नजर आती है। ठीक है, अगर आप उसको किसी और कलर में देखें, जैसे ग्रीन कलर की पत्ती है, ठीक है, ग्रीन कलर का लीफ है, आप उसके ऊपर रेड लाइट को फॉल करवाओ तो आपको ब्लैक कलर में नजर आएगी। क्यों? क्योंकि रेड कलर फॉल हो रहा है और वो रेड कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, आप तक तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई ही नहीं, इसीलिए वो आपको ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स हमें विजिबल होते हैं। अब देखिए डिस्पर्जन क्यों होता है? सो बेसिकली डिस्पर्जन इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर यू कैन से जो प्रिज्म का शेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन द केस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पर, दैट इज द रीजन that you are going to get the different color of the light। and also यहाँ पर जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, that the speed of the light of different colors in the same medium is different, that is the reason also। so देखिए फिर हमने देखा था कि जो म्यू ऑफ वॉयलेट है दैट इज ग्रेटर देन द म्यू ऑफ रेड। रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम ग्लास की बात करें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रेड लाइट एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू द वॉयलेट लाइट, मतलब वॉयलेट लाइट अगर अंदर जा रही है उसमें तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसका स्पीड में, स्पीड डिफरेंट होती है। बेसिकली हर एक कलर का स्पीड जो है ग्लास के अंदर से डिफरेंट होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो ये देखिए, लाइट, व्हाइट लाइट जब अंदर जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है, राइट, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम अपोजिट एंगल पे आप क्या करें, प्रिज्म को लेकर आए, दूसरे प्रिज्म को लेकर आए, सेम मटेरियल का होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल 2 प्रिज्म होने चाहिए। दूसरे प्रिज्म को इस तरीके से लेकर आएंगे कि ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, एज अ रिफ्रैक्शन जब बाहर आएगी लाइट रे तो आपको ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट नजर आएगी। ठीक है, तो मतलब वो सारे कलर्स वापस से मिक्सड अप हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, अब देखते हैं हम स्कैटरिंग एंड दी यू कैन से, देखिए अब देखो यहाँ पे स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, मेनली हम जो बात करते हैं। सो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी लाइट रे पार्टिकल्स के ऊपर फॉल कर रही है तो वो लाइट को क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट कर देते हैं। दिस इज नोन एज दी स्कैटरिंग। सो जब कभी भी देखो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, बाहर से लाइट आ रही है, इट इज फॉलिंग ऑन दैट पार्टिकल, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को रीडायरेक्ट कर देगा, उसको स्प्रेड आउट कर देगा। सो दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो पार्टिकल जो होते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो ज्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ऑलराइट, स्कैटरिंग देखिए, स्कैटरिंग में मेनली क्या होता है, जो पार्टिकल का यू कैन से कितना ज्यादा स्कैटरिंग होगा कितना नहीं, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ पे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, जितना स्कैटर्ड लाइट है वो उसका वेवलेंथ के 4th पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते, जो हमने देखा था टिंडल इफेक्ट, हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी जो सनलाइट है या कोई भी लाइट है, जब कभी भी किसी छोटे से पॉइंट से आती है और वो पार्टिकल्स पे फॉल होती है तो क्या होता है, हमें पाथ विजिबल हो जाता है। दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हेट्रोजेनस में मेनली ऐसा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी सच टाइप ऑफ पाथ। यू कैन सी इन दी, आपको डेंस फॉरेस्ट में भी ऐसा नजर आएगा, ये लाइट के आप देख पा रहे हैं इनका रेज, द पाथ ऑफ द लाइट यू आर गोइंग टू सी, दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। देखिए स्कैटरिंग की वजह से ही हमें स्काई का जो कलर है वो ब्लू नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आप देख सकते हैं, हमें क्लाउड्स वाइट नजर आते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ओनली। ठीक है, यहाँ पर आइस वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, वो भी सारी लाइट्स को करते हैं, दैट इज वाई यू आर गोइंग टू सी दैट देम एज व्हाइट। फिर देखिए सनराइज और सनसेट का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ओनली, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर इज scattered out and that is why you are going to see the high wavelength light and that is the red color.
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आप आगे कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने देखा था, इसका हमने वेरीफाई किया था कि ये जो स्कैटरिंग में आपको रेड कलर नजर आता है वो ही क्यों नजर आता है, ठीक है, पिंकिश एंड द रेड कलर यू हैव गोइंग टू से। तो आप देखेंगे पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं ना, वो ज्यादातर स्कैटरिंग करते हैं, ऑलराइट, एंड स्कैटरिंग की वजह से यू आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट कलर्स, एंड आपको हॉरिजन के टाइम पे बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट को, एंड दैट इज द मेन रीजन कि वहां से क्योंकि लंबा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द लाइट रे जो है वो लाइट रे वो उसके अंदर ब्लू कलर, मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर इज गोइंग टू बी स्कैटर्ड राइट बाय द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. Remaining color is the red color, and that is why the high wavelength you can say color is the red light. So you can say इसी वजह से हमको सनसेट और जो सनराइज है वो हमें रेड नजर आता है. हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो देखिए कभी भी आप लाइट रे को, ठीक है, लाइट रे को डेंसर मीडियम में भेजें और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भेजने की कोशिश करें. सो एक एंगल ऐसा होता है कि जिसके आगे अगर आप कोई बढ़ा देते हैं एंगल को, किसी एक यू कैन से स्पेसिफिक एंगल दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इस लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भेजने की कोशिश करेंगे, तो लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेगी और उसी डेंसर मीडियम में चले जाएगी. दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब बिल्कुल अंदर ही अंदर होता है. नाउ दिस लाइट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस स्लैब. That is the reason because total internal reflection यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, देखो इस तरीके से होता है. अगर आप लाइट रे को बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस भेजने की कोशिश करें फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो सीधे चले जाएगी. अगर आप किसी छोटे से एंगल पे भेजेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें मिलेगा बड़ा एंगल मिलेगा क्योंकि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. फिर आप अगर कुछ इस तरीके से इस एंगल पे लाइट रे को भेज रहे हैं कि लाइट रे इस सरफेस के इंटरफेस के बिल्कुल अलोंग चली जाएगी, तो दिस इज नोन एज दी यू कैन से द क्रिटिकल एंगल. जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, फिर आप आगे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे अगर लाइट रे को सेंड करते हैं तो क्या होता है, इंसिडेंट करते हैं तो वो वापस सेम मीडियम में आ जाती है, एंड दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये हमने पूरा देखा था किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. ऑलराइट, कंडीशंस क्या होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि भाई लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए जिन भी मीडियम में हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें देखी थी कि जो क्रिटिकल एंगल है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के. बहुत सारे फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से होते हैं. ठीक है, अब देखिए रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं. प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, सो दे स्कैटर द लाइट. ऑल्सो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है ओवर देयर, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड देन कम्स टू दी डिस्पर्जन एंड यू आर गोइंग टू सी द रेनबो. दो रेनबो एक साथ बनते हैं. फर्स्ट वन जो ब्राइटली आपको दिखाई देता है दैट इज द प्राइमरी रेनबो. जो पीछे आपको सेकेंडरी बहुत डिम दिखाई देता है दैट इज द सेकेंडरी रेनबोज. ठीक है, दो तरीके के रेनबोज हमें मिलते हैं. ऑलराइट, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वन. फिर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन हो रहे हैं. प्राइमरी रेनबो एंड द सेकेंडरी रेनबो दोनों ही किस तरीके से बन रहे हैं. ऑलराइट, फिर आते हैं हम स्फेरिकल लेंसेज पे. तो देखिए स्फेरिकल लेंसेज दो तरीके के मेन स्फेरिकल लेंसेज हमने स्टडी किए थे, कन्वेक्स, कनकेव. ठीक है, कन्वेक्स में जो इसका मिडिल पार्ट है वो थिक होता है, एजेस होते हैं थिन. कनकेव के लिए जो मिडिल पार्ट है वो थिन होता है, एजेस होते हैं थिक, है ना. यहाँ पर हमने देखे दो तरीके के लेंसेज. फिर देखिए टर्म्स रिलेटेड टू दीज. सो वी हैव स्टडीड वेरियस टर्म्स. तो देखिए दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, फिर आप देखिए कि ये जो लाइन है यू कैन, पहले तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं. सो देखिए दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्योंकि इस लेंस के पास दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं. सो इस स्फेरिकल सरफेसेस के लिए जो स्फेयर है वो ये है डॉटेड वन, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर दूसरे का इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दूसरा. तो यू आर गोइंग टू गेट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, C1 एंड C2. C1 और C2 को, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइट कौन हुई, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, एंड ऑलराइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज द फोकस. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हमने बताया कि थिन लेंसेज की अगर हम बात करते हैं
तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल जाती है। अगर हम थिक लेंस की बात करते हैं तो थिक लेंस के केस में क्या होता है, लाइट रे आती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से सीधे निकल जाती है, बट देयर वुड बी स्लाइटमेंट, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट इन द इंसिडेंट लाइट। सो वी यूज ऑलवेज थिन लेंसेज सो दैट जो लाइट रे है वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधे चले जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ऑलराइट, फिर देखिए प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो देखिए ऐसा पॉइंट जहां से अगर हम लाइट रे को भेज रहे हैं दे बिकम पैरेलल, दिस इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ हम लाइट रेज को भेज रहे हैं तो अगर लाइट रे पैरेलल हो जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई पैरेलल लाइट रेज को भेजा तो बन गए वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए कन्वेक्स लेंस के केस में, दिस इज नोन एज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और अगर आप लाइट रेज को पैरेलल भेज रहे हो और वो इस तरीके से चले गए कि भाई वो एक पॉइंट से आ रहे हो, तो ये पॉइंट जो है बन गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है नोन एज द फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अभी हमारा ज्यादा नहीं बचा है, देयर आर वेरियस रूल्स, लेट्स सी द रूल्स हियर। रूल्स देखिए, पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है कन्वेक्स लेंस के तो वो फोकस से पास हो जाएगी। लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, ये हमने इसके रूल्स देखे थे। देयर आर वेरियस इमेज फॉर्मेशन थिंग्स जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसके, ये जो आप टेबल देख रहे हैं दिस इज टोटली सिमिलर फॉर दी, यू कैन से कन्वेक्स लेंस है तो इट इज सिमिलर टू दी कनकेव मिरर, टोटली अपोजिट, बिल्कुल सेम है। ठीक है, वहीं पर रूल्स देखिए कनकेव के लिए, तो कनकेव लेंस पर अगर आप पैरेलल इमेज लाइट रे डालेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ रे विच इज गोइंग यू कैन से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसे आती है बट एक्चुअली में वो यहाँ जा रही है। ठीक है, फिर आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर पे कोई आप लाइट रे डालेंगे तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। राइट, इसके जो इमेज फॉर्मेशन है दैट इज टोटली सिमिलर टू दी यू कैन से कन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर देखिए लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला जो हमने देखा था, पावर ऑफ द लेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देखिए पावर ऑफ लेंस जो होता है दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेंस का जो फोकल लेंथ है इन मीटर स्पेसिफिकली दैट इज दी यू कैन से पावर ऑफ द लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होती है। वहीं पर इसकी जो यूनिट है वो डायोप्टर है। ऑलराइट, फिर देखिए अगर दो लेंसेज बिल्कुल एक दूसरे के कंबाइन करके रखे, एक के बाद रखे हमने, तो फिर उनका जो पावर है वो एडअप हो जाएगा। वहीं पर 1 अपॉन जो फोकल लेंथ है ऑफ द कॉम्बिनेशन वो बन जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन लेंस, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक है, लेंस फॉर्मूला देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एफ इज द फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन सेम एज दी मिरर का मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि भाई जो इमेज बन रही है वो छोटी है बड़ी है सेम साइज है। सो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए यहाँ माइनस साइन नहीं है, मिरर के केस में यहाँ माइनस साइन आता है। ठीक है, प्लस अगर आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है वो वर्चुअल इमेजेस के आ रहा है, नेगेटिव जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो रियल इमेजेस के लिए आ रहा है। उसके अलावा आप देखिए मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हो फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड देन कम्स टू द ह्यूमन आई। हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा, उसके पार्ट्स देखे। सो देखो क्रिस्टलाइन लेंस, हमने जो भी उसके पार्ट्स देखे थे वो क्या थे, लेंस हमने देखा क्रिस्टलाइन लेंस। देन कम्स टू दी एक्वेस ह्यूमर। लेंस हमारा है कन्वेक्स लेंस मेनली। एक्वेस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। प्यूपिल इज द विंडो ऑफ योर आई, जहां से एंटर करती हैं लाइट रेज। ठीक है, फिर देखिए आप आइरिस, वो जो कलर्ड पार्ट होता है आपके आईज में दैट इज द आइरिस। ठीक है, फिर देखिए फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया वी कैन से इज द यू कैन से द मोस्ट आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है, जो लेयर है वो दैट इज कॉर्निया। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज द लिक्विड फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ठीक है, फिर देखिए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो विजुअल इंफॉर्मेशन को जो रेटिना पे बनता है, स्क्रीन पे बनता है, उसको वो कहाँ पर लेकर चल जाती है, ब्रेन तक लेकर चले जाती है। ठीक है, फिर आता है रेटिना, द स्क्रीन, जहाँ पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और वहाँ पर हमारी इमेज बनती है। फिर आता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ने लेंस को होल्ड अप करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसी
इन्हीं सिलियरी मसल्स की मदद से जो लेंस है अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, ठीक है। फिर देखिए स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट, स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट जो कि हमारे आंखों में आपको नजर आता है, ठीक है। वर्किंग किस तरीके से होती है, देखिए लाइट रे आती है फ्रॉम द प्यूपिल, देखिए सबसे पहले कॉर्निया से टकराएगी, रिफ्रैक्शन होगा, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया, देन इट कम्स टू द एक्वस ह्यूमर, देन प्यूपिल से होती हुई लाइट आंखों के अंदर जाएगी, लेंस से जाएगी, लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को रेटिना पे, एंड रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे जो विजुअल इंफॉर्मेशन होगा वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द इमेज। ऑलराइट, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि भाई हमारी आंखों में पास की देखने की भी पॉसिबिलिटी कि भाई हम चीज़ों को, पास की चीज़ों को भी अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को भी क्लियरली देख पाते हैं। सो दी एबिलिटी कि हम दोनों ही चीज़ों को क्लियरली देख पाए, मतलब फोकल लेंथ चेंज होने की जो कैपेबिलिटी है, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। नियर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां तक हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, उसके पास क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो वो पॉसिबल पॉइंट, नियर पॉइंट जिससे हम पास तक देख पाते हैं क्लियरली। फार पॉइंट जहां तक भी हम लोग क्लियरली देख पाए, दैट इज द फार पॉइंट। सो ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड जो यू कैन से फार पॉइंट है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए दैट इज इंफिनिटी, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब सबसे कम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली और डिस्टिंक्टली चीजों को देख पाए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। फिर देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन, अगर हम अपने सामने से किसी ऑब्जेक्ट को हटा ले तो थोड़ी देर तक हमारी आंखों पर वो इमेज रहती है, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज रहती है। हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया फिर भी कितनी देर तक, 1/16 सेकेंड तक, दिस इज नोन एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर हम यही परसिस्टेंस ऑफ विजन यूज करें किसके लिए, स्टिल पिक्चर्स के लिए, सो देखो स्टिल पिक्चर्स के केस में क्या होगा, जल्दी जल्दी आपके सामने बहुत सारी स्टिल पिक्चर्स को लेकर जाएंगे, तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है हमारी रेटिना पे वो मिक्सड अप हो जाएगा, और हमें किस तरीके से लगेगा कि भाई वो एक मूविंग पिक्चर है इंस्टेड ऑफ अ स्टिल पिक्चर, ठीक है। वी हैव सीन द एग्जांपल्स, देखो ये सारे हैं स्टिल पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स को अगर बार बार आपकी आंखों के सामने लेकर जाएंगे तो यू आर गोइंग टू व्यू दिस एज दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ऐसा लगेगा मूव कर रहा है। फिर देखिए कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सम कलर्स, कुछ कलर्स के बीच में आप पहचान नहीं पा रहे हैं व्हाट इज दैट कलर, ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स, दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। जैसे आप इस सर्कल को देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में इस सर्कल में जो नॉर्मल ह्यूमन आई होगा, नॉर्मल ह्यूमन जिसका ह्यूमन कैसे नॉर्मल ह्यूमन आई जिसका होगा, विजन जिसका नॉर्मल होगा, उसको यहाँ पर नंबर 74 नजर आएगा लिखा हुआ, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन है, अगर पार्शियल उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पे तो 71 दिखाई दे सकता है, और अगर उसका टोटल कलर ब्लाइंडनेस है देन उसको यहाँ पे कोई भी नंबर ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए अलग अलग कलर जो हैं उनका परसेप्शन डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जो बीज होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को देख पाती है, हम नहीं देख पाते। उसी तरीके से ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई का विजन है, और ऐसा जो है डॉग्स का विजन, ऐसा माना जाता है कि डॉग कुछ इस तरीके से देखते हैं, मोस्ट लाइकली टू बी सीन लाइक दिस, वो इस तरीके से इस पिक्चर को देखेंगे, उन्हें ये दिखाई देगा एक्चुअली, ठीक है। कैटरैक्ट इज द प्रॉब्लम जिसके अंदर हमारे आईलेंस के सामने एक लेयर आ जाती है, एक ऑपेक लेयर जो कि लाइट को अंदर नहीं जाने देती। कई बार ये पार्शियल होता है, कई बार ये फुली होता है, तो आपको टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। बट ड्यूरिंग बाय द सर्जरी बाय लेजर इट कैन हैपन कि उस लेयर को हटाया जा सकता है, एंड उसको सिंपली जो हमारे पूरा का पूरा देखने का प्रोसेस है वो पूरा सही रिकवर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में देखिए दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपको रेटिना पे मिल रही है, पास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी आपको रेटिना पे मिल रही है, तो यू आर गोइंग टू सी बोथ द ऑब्जेक्ट जो कि दूर भी है और जो ऑब्जेक्ट पास है, दोनों की ही इमेज क्लियरली आपको रेटिना पे फॉल करते हुए दिख रही है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखिए, टाइप ऑफ डिफेक्ट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। सो मायोपिया इज द प्रॉब्लम जहां पर आप पास की चीजों को देख पाते हैं और दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनती है, तो इसका मतलब हमारा जो आई बॉल है वो एक्सटेंड हो गया, वो बड़ा बन गया है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसको करेक्ट किनसे किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस क्या करेगा, दूर की ऑब्जेक्ट की इमेज जो है नियर पॉइंट पे बना देगा जहां तक आप देख पा रहे हैं और आप चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखिए हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब आप दूर की चीजों को देख पा रहे हैं और पास की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं।
यहाँ पर क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है, तो हमारी आई बॉल छोटी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस की वजह से। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पास की चीजों की जो इमेज है वो दूर बनाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली देख पाएंगे फिर हम ऑब्जेक्ट को जो पास में है, ठीक है। फिर देखिए प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि जनरली बिकॉज ऑफ एजिंग अकर होता है, क्योंकि इसमें हम पास की चीजें भी नहीं देख पाते और दूर की चीजें भी नहीं देख पाते। इसके केस में हम बायफोकल लेंसेज यूज करते हैं, जहां पे नीचे वाला जो होता है दैट इज कन्वेक्स, जो कि हमें पास की चीजों को देखने में हेल्प करता है, और जो बड़ा वाला होता है वो दूर के लिए होता है, वो है कनकेव, राइट। तो ये दूर की चीजों को देखने में हेल्प करता है, सो वी यूज द बायफोकल लेंसेज। एंड नेक्स्ट कम्स दी एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर हम फोकस नहीं कर पाते पैरेलल, सो यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे हम साइमल्टेनियसली फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल विजन में आपको एक ग्रिड इस तरीके से दिखाई देगी, बट किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको एस्टिग्मैटिज्म है उसे कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती है। वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोकस करेगा तो उसे वर्टिकल कर्व दिखाई देंगी, अगर वो वर्टिकल लाइंस पे फोकस करेगा तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कर्व दिखाई देंगी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज लाइक दिस, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लेंसेज है इस शेप के, सो बाय यूजिंग यू कैन सी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन of the human eye checkup, after complete checkup you can get the correct cylindrical lenses and this problem can be solved using lenses only. Alright, so हम लोगों ने पूरा हमारा chapter finish किया, right? The whole chapter हम लोगों ने revise कर लिया है. In the next lecture we are going to do some questions based on the same thing. Alright, so let's end this. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.